Hello friends, welcome to my YouTube channel Commerce Concept Academy. Here we take online classes for class 11th, 12th Commerce, BCom, MCom and much more. Our focus to create this channel is to spreading knowledge on various subjects of commerce. So today we are going to start from class 11th Accountancy chapter 1. Here I have tried to simplify the chapter in a very easy manner to understand for students of class 11th. Friends, as we all know that we haven't studied account in our earlier classes. So this will be a new subject for class 11 students. So here I will let you know how you can learn the basics of accounts in this video. So let's start. Friends, we can start from the first chapter of accounting, that is introduction to accounting. And introduction to accounting meaning its advantages, disadvantages, there are a lot of things in this chapter we can learn. जैसे कि क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जहां पर हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, और हम लोग जब किसी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो वी हैव टू स्टडी from the very beginning, like from the basics. So first we have to study what is accounting. Means to say, the chapter is itself saying like introduction to accounting. First we have to learn what is accounting. That means कि accounting क्या है, हमें इसे समझना होगा. Why we prepare the accounts of any company, organization. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना होगा so that we can understand in a better way. So let's start from what is accounting. As we all know that if there is a business, there are numerous business transactions. Like what is business transaction? Business transaction is like हम business जब करते हैं, business में कोई भी सेल करना, परचेज करना, एक्सपेंसेस इनकर करना, पे ऑफ करना, किसी को सैलरी देना, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना, कोई मतलब पे करना, या कोई डायरेक्ट है एक्सपेंसेस हैं उनको पे ऑफ करना. लाइक ये सारी चीजें वी कैन नॉट रिटेन इन आवर माइंड सो लॉन्ग. मीन्स टू से ये सारे ट्रांजेक्शन्स हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू रिकॉर्ड इट. that only the thing is, recording means accounting is a process of recording. First we can study like accounting क्या है. accounting एक रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है. रिकॉर्डिंग हम किस चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, विच आई हैव clear you like business transaction. What are business transactions? Business transaction includes sales, purchases, paying of expenses, incurring income, receiving incomes. There are a lot of things. Like recording means business transactions को record करना एक systematic way में. हमारे पास एक standard format होता है which is generally accepted accounting principles. उन principles के according हम लोग अपने accounting को prepare करते हैं, और सबसे पहले हम उसको record करेंगे so that हम लोग कोई एंट्री हमारे पार्ट पे हमसे भूल ना हो जाए, लिखने को रिकॉर्ड ना कर पाए हम, तो हम उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं. Second thing is accounting is a process of interpreting. Like interpreting means explanation. When you record a thing, when you record a business transaction, then you will interpret it. Like which is like what is sale, what is purchase, what are expenses. इस तरीके से हमें इसको इंटरप्रिटेशन करनी है कि क्या चीज क्या हमारा ये एक्सपेंस है, या ये हमारा इनकम का आइटम है, या हमारे ये सेल्स है, या हमारी ये परचेजेस है, या फिर हमने ये कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि हमने रिकॉर्ड किया है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये किस हेड में आना है. Now third one is summarizing. What is summarizing? Summarizing is like when you have already recorded the business transaction,
यू हैव इंटरप्रेटेड कि भाई ये सेल्स है या ये परचेज है या ये एक्सपेंसेस है। अब आप उसे समराइज करोगे। समराइज कैसे करेंगे, यानी कि एक सपोज दैट एक ही पेज पे हम सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर लेते। देर आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंटिंग। मीन्स समराइज हमें करना है, समरी फॉर्म में हमें उसे लेकर के आना है और सारे ट्रांजेक्शन की एक समरी बनाकर, सो दैट वी कैन कंक्लूड अ थ्योरी इन अ डिसीजन, लाइक हमने प्रॉफिट अर्न किया या हमने लॉस इनकर किया। मतलब कहने का ये है कि सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद क्या कौन सी कैटेगरी का एक्सपेंस है या इनकम है, उसके बाद हम उसे समराइज करते हैं। समराइज के अंदर हमने सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद उसके कंक्लूजन जिसे हम कह सकते हैं, समरी फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, दिस इज द समरी फॉर्म और समराइजिंग प्रोसेस। लाइक आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को समरी फॉर्म में लेकर के आ रहे हो कि आपने अपने बिजनेस में क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर किया, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नाउ what is reporting? The last process of accounting is reporting. Up when you have prepared your summary of business transactions, that means now the last process is reporting. जब आपने समरी बना ली होगी, अब उस समरी का अपने पास रख करके तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें उसे क्या करना होगा, कंपनी को रिपोर्ट करना होगा। कंपनी मीन्स टू से हमें कोई भी, अगर हम बिजनेस, अगर सपोज दैट वी रन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो हम एक सोल प्रोप्राइटर, अगर इफ आई एम द ओनर ऑफ माय ओन बिजनेस, लाइक रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैं अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रही हूँ, तो मुझे पता होगा कि मेरे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो उससे मैंने कितना अर्न किया, कितना लॉस हुआ मुझे। तो ये एक रिपोर्ट मेरे पास रेडी हो जाएगी जब मैं ये सारी चीजें ऊपर के वाले प्रोसेस फॉलो कर लूंगी। इसी तरीके से अगर इफ वी आर एन अकाउंटेंट ऑफ एनी कंपनी, तो हमें कहीं ना कहीं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग करनी होगी कि हमारी जो आपके जो बिजनेस की जो पोजीशन है वो ये कह रही है, मतलब आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया, पूरे साल में आपने कितने कितने खर्चे किए, पूरे साल में आपने किस किस एरिया पे खर्चा किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हमारे पास एक समरी वे में हमारे पास जब जनरेट हो जाएंगी, इसको हम उसको यानी कि रिपोर्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। आई होप कि ये अकाउंट व्हाट इज अकाउंटिंग आपको क्लियर होगा। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सेकेंड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड में बताया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा और इन ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट होता है। व्हाट आर इकोनॉमिक इवेंट्स? इकोनॉमिक इवेंट्स इंक्लूड्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। जब भी आप कोई बिजनेस के अंदर पैसे की लेन देन की बात करते हैं, खरीदना बेचना पैसे में, मतलब अगर आप परचेज कर रहे हो, परचेज आप मनी दे करके करोगे, यानी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी हम बात करेंगे। इकोनॉमिक इवेंट होता है कोई भी काम करना, लाइक सेल करना, परचेज करना, किसी को हायर करना, उस सैलरी पे किसी को सैलरी पे करना, ये इवेंट है। लेकिन इकोनॉमिक इवेंट क्या है? जब उस पैसे में, जब उस इवेंट को हमने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में किया हो, यानी अगर हमने परचेज करी है तो हमने उसके बदले में पैसा दिया हो, अगर हमने सेल करी है तो उसके बदले में हमें इनकम रिसीव हुई हो, अगर हमने किसी को सैलरी पे करी है तो हमने मॉनेटरी मनी के फॉर्म में हमने उसे सैलरी पे करी हो। आई होप कि ये इकोनॉमिक इवेंट क्लियर है ना। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि मनी में मेजरेबल हो, जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन में बोला, विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट, मेजरेबल इन मनी। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि हमने गुड्स को सेल आउट किया कस्टमर को कैश में, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट और बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेलिंग गुड्स टू अ कस्टमर फॉर क्रेडिट, हम कर सकते हैं भाई, क्रेडिट पे अगर हमने किया है तो उससे भी पैसा हमें मिल जाएगा, तो ये भी हमारे लिए एक इकोनॉमिक इवेंट है। पेमेंट ऑफ रेंट, हमने रेंट पे किया तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमिक इवेंट है। परचेजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर, हम सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज करेंगे, इसके लिए हम पैसा देंगे, ये भी हमारे लिए इकोनॉमिक इवेंट है, और वी कैन से इट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ पेमेंट ऑफ वेजेस और सैलरीज टू एम्प्लॉइज, हम अपने एम्प्लॉइज को, लेबर्स को सैलरीज दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली,
तो ये भी हमारे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि वो हमें अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें वेजेस और सैलरीज दे रहे हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. नाउ बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू enhance your business, to expand your business, we have to take money from bank. तो ये भी हमारे लिए, एंड फ्रॉम दैट मनी वी इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, हम उस पैसे से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, तो जाहिर है ये भी हमारे लिए एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया. कमिंग फॉरवर्ड, नीड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मीन्स, हमें अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात कर भी रहे हैं तो क्या नीड है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, हम क्यों करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्या हम इसको रिटेन करके नहीं चल सकते माइंड में, हमने आज क्या क्या चीजें खरीदी, हमने क्या क्या सेल आउट किया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमने कितना एक्सपेंसेस इनकर किए, ये सारी चीजें हम अपने माइंड में रख सकते हैं. तो हम एक दिन के लिए रख सकते हैं, हम 2 दिन के लिए रख सकते हैं, बट ह्यूमन माइंड कैन नॉट रिटेन सो लॉन्ग. So that is why we have to maintain records of our business transactions on day-to-day basis. तो ऑर्गेनाइजेशंस को एक रिलायबल, एक सिस्टमेटिक डेटा भी चाहिए होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट इन योर बिजनेस, हाउ मच मनी यू हैव रिसीव्ड, you have earned in your business. So for that purpose, organizations need to have a reliable, systematic and way of recording financial information. Accounting is necessary to ensure that those running the business have a reliable record of financial transactions. Means आपने जो भी अपने बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो कि मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स का एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप एक प्रेडिक्शन लगा सको कि आपका बिजनेस कितना इन नियर फ्यूचर, इन लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग टर्म आपका जो बिजनेस है वो कितना फ्रूटफुल है, वायबल है. इसके बाद हम आगे आते हैं, कुछ हम फंडामेंटल्स पे डिस्कस करेंगे. जैसे कि अभी मैंने बोला, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल्स बहुत जरूरी हैं. सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि हम, अगर हमारे पास एक, क्योंकि हमने अर्लियर क्लासेस में कभी इसको रीड नहीं किया होता है, अकाउंट्स होती क्या है हमें नहीं पता होता है, लेकिन समहाउ हमें हमारी नॉलेज में होता है कि हाँ, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग अकाउंटिंग करते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब एक जगह रिकॉर्डेड होता है. ये सारी चीजें हमें एक एक नॉर्मल वे में, कॉमन वे में पता है. लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं, तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम रीड करते हैं, तो एक ये 3 वर्ड्स अकाउंटिंग की बैकबोन है. आप इसको ध्यान से समझ लें कि असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है एंड ओनर्स फंड्स क्या है. लाइक अगर हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस चाहे वो एक स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो एक लार्ज बिजनेस हो, फॉर्म ऑफ बिजनेस आपका सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में काम करो, आप चाहे एक कंपनी के फॉर्म में काम करो, आप चाहे एक पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस करो, ये सारी चीजें अगर आप यानी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में इस टर्म को समझोगे. मींस असेट्स. असेट्स का मीनिंग क्या होता है? असेट्स का मतलब होता है जितनी भी हेल्पिंग चीजें होती हैं, लाइक जिन जिन चीजों से हम काम करते हैं, जो जो हमें हेल्प देती हैं, वो हमारी एसेट्स होती हैं, और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. लाइक अगर मैं बात करूं असेट्स की, तो सबसे पहले हम बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ किसी भी चीज का स्टॉक होगा. लाइक अगर मैंने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो गारमेंट्स के बिजनेस के लिए मेरे पास गारमेंट्स जो होंगे वो मेरे लिए स्टॉक माना जाएगा, इन विच आई एम डीलिंग माई बिजनेस, लाइक द कमोडिटी इन विच आई एम डीलिंग इज कॉल्ड माई एसेट. मीन्स अगर मैंने गारमेंट्स की एग्जाम्पल लिया है, तो गारमेंट्स मेरे लिए एसेट्स कहलाएंगी. और गारमेंट्स के साथ साथ उन गारमेंट्स को बनाने के लिए आई हैव सम मशीन ऑल्सो. तो वो मशीन भी, उस मशीन को खरीदते टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और उस मशीन से मुझे आउटपुट निकल के आ रहा है, और वो मशीन मेरे पास रहेगी, और उससे मैं आगे फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हूँ. तो ये मेरे लिए असेट्स कहलाती हैं. आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट आर असेट्स. तो असेट्स हमारी जितनी भी हम हेल्पिंग चीजें होती हैं हमारे पास, जैसे कि हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और आपका स्टॉक, ये सारी चीजें हमारे लिए एसेट्स हैं. मैं इसके थोड़े और इन डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगी, जो कि हम इन डेप्थ जो पढ़ेंगे वो हम सेकंड वाले लेक्चर में वी विल स्टडी कि हम एसेट्स को और कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर लायबिलिटीज? लायबिलिटीज आर लाइक, इफ आई हैव सम डेट
कि मुझे किसी का कुछ पेमेंट करना है, तो दीज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। मतलब ये अभी मेरा नहीं है, मतलब बिजनेस में जो चीज मुझे किसी और को पे करनी हो वो मेरी लायबिलिटीज है। लाइक मैंने बैंक से लोन लिया है, वो मेरी लायबिलिटी है, बिकॉज दैट लोन हैव टू बी रीपेड, तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई। सपोज दैट मैंने अपने जो मैंने एसेट्स ऊपर खरीदी थी, लाइक मैंने जो गारमेंट्स खरीदे थे, जो स्टॉक मैंने सपोज गारमेंट्स का रॉ मटेरियल क्लॉथ वगैरह खरीदा था, वो रॉ मटेरियल मैंने किसी से उधार पे खरीदा था, तो मुझे उसका पैसा देना होगा। मैंने किसी से उधार पे पैसा लिया है, मुझे उसका पैसा देना होगा। बैंक से मैंने पैसा उधार पे लिया, तो मुझे उसका पैसा देना होगा। तो ये सारी मेरी लायबिलिटीज के हेड में आएंगी। आई होप कि असेट्स और लायबिलिटीज आपको क्लियर होगा। लेकिन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर असेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ वाइडर सेंस। नाउ व्हाट आर ओनर्स फंड? ओनर फंड्स क्या होते हैं? ओनर फंड्स का मतलब है कि जो भी बिजनेस का ओनर है उसने अपनी खुद की पॉकेट से अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसको हम ओनर्स फंड कहते हैं। अगर हम बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें, कंपनी की लैंग्वेज में बात करें, तो इसको हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं। यानी कि जिसने जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसने कंपनी की कैपिटल में शेयर होल्ड किया हुआ है, ये उनका पैसा कहलाता है। मतलब सपोज दैट इफ आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, तो मेरे पार्ट पे जो खुद का पैसा होगा वही मेरा ओनर्स फंड कहलाएगा। लेकिन मैंने कुछ पैसा बैंक से भी लिया हुआ है और उससे भी मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो वो मेरी लायबिलिटीज की हेड में चला जाएगा। आई होप कि ये 3 टर्म्स जो कि इसकी बैकबोन है अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स की, वो आपको क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो आगे वाले लेक्चर्स होंगे हम होपफुली उसके अंदर बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जो हमारे साथ जुड़ चुका है, आप सब इस चीज को ध्यान से समझें। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास आपके और कोई रिलेटिव्स हैं जो अभी नए क्लास 11th में आए हैं, इफ यू वांट टू स्टडी विद आर CCA लाइक, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमसे क्लास भी ले सकते हैं। नाउ कम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इस स्लाइड पे हम आते हैं, जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको ये चीज समझा पाऊँ, सो दैट आप एक अकाउंटिंग के बेसिक्स को स्टार्ट कर पाएं, और फिर आपके लिए जो अकाउंटिंग के आगे आने वाले चैप्टर्स है वो बहुत ही ईजी होने वाले हैं। नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? अब इतना हमें समझने के बाद, व्हाट आर अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, और ये एसेट्स और लायबिलिटीज समझने के बाद हमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव्स भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, इसके लिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सके, बिजनेस में कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है और कितना हम लॉस इनकर कर रहे हैं, सो दैट हम टाइमली एक्शन ले सकें। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसका पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, लाइक वेरियस यूजर्स कौन कौन हो सकता है हमारे बिजनेस का, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन हो सकती है हमारे बिजनेस की। लाइक सपोज दैट अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं बिजनेस करती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप का, और मैं एक सर्टेन लिमिट तक इनकम को अर्न करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी मेरे ऊपर, और मुझे आई हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट एज वेल। तो गवर्नमेंट वुड बी द इंटरेस्टेड पार्टी कि मेरे बिजनेस में मैंने कितना अर्न किया, सो दैट मैं उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ अपनी इंफॉर्मेशन कि हमने ये अर्न किया था, इसलिए हम अपना जो हमारा बिजनेस है वो हम बहुत कितना अर्न कर रहे हैं, उस पर हम कितने लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए। इंटरेस्टेड पार्टी और भी हो सकती है जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया है, मीन्स टू से इन्वेस्टर्स विल बी आर इंटरेस्टेड पार्टीज। लाइक यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा कि इंफॉर्मेशन जो वेरियस यूजर्स हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उसको वो इजीली उसको समझ सकते हैं कि अच्छा हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ ये है और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं।
लास्ट इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर हम किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं, हम सपोज दैट अकाउंटिंग कर रहे हैं, या हम अपने खुद के बिजनेस की अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो जाहिर है हम अपने बिजनेस को रन थ्रू कर रहे हैं, तो हम एनालाइज करेंगे अपने फाइनेंशियल डेटा की, जो डेटा हमने, जो पैसे से रिलेटेड हमने अभी ऊपर बात करी थी कि हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना एक्सपेंसेस दिए, कहाँ कहाँ से हमें इनकम रिसीव हुई। तो ये सारा फाइनेंशियल डेटा को हम जब एक समरी फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद जो हमारा टर्म आता है वो आता है एनालाइजिंग का, सो दैट हम इजी वे में उसे समझ सकें और आगे आने वाले टाइम में हम उसका डिसीजन टाइमली और करेक्टली ले पाए। कमिंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं व्हाट आर स्टेप्स। अब यहाँ तक तो हम समझ गए कि अकाउंटिंग क्या है, थोड़ा बहुत हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी समझ चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग करेंगे कैसे, हम इस पे बात करते हैं। तो ये मैंने एक साइकिल टाइप से आपको बना के दिया हुआ है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन से। आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन जो है मींस अगर आपने सेल करी है, परचेज करी है, सैलरी पे करी है, सपोज आपको कहीं से इनकम रिसीव हुई है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए सबसे पहला स्टेप होगा अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के प्रोसेस में। तो आइडेंटिफाई का मतलब है पता लगाना है हमें ये कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है। क्लियर है? तो जब हमने ये पता लगा लिया कि हाँ हमने सेल करी है, कितने की करी है, परचेज करी है, कितने की करी है, हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो दिस इज कॉल्ड, हमने एक स्टेप हमने फुलफिल कर लिया है इसका, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। जर्नल क्या है? ये एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज का टर्म है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, जिसमें हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक मैं चाहूँ तो एक पेपर पे सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूँ वन बाय वन, डेट वाइज, यानी इस डेट को मैंने इतने का खरीदा, इस डेट को मैंने इतने का बेचा, इस डेट को मैंने इसको इतने खर्चा पेमेंट किया, इससे मैंने इतना रिसीव किया, इसको मैंने इतना इन्वेस्ट किया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो जर्नल है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आप अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप अकाउंटिंग को फॉलो करें, और अकाउंटिंग के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी रिकॉर्डिंग यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करें। तो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में होपफुली जर्नल को डिस्कस करेंगे कि जर्नल बनता कैसे है, जर्नल फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल होता क्या है, जर्नल के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कहाँ तक, कितनी कितनी रिकॉर्डिंग किस हिसाब से करते हैं, ये सारी चीजें वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग दी और रिकॉर्डिंग दी जर्नल, हम बात करते हैं पोस्टिंग। जर्नल एक, मैंने जैसे कहा, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इसकी पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग का मतलब यहाँ ये हुआ कि जर्नल से एंट्रीज को उठा करके हमें अपने उसके स्पेसिफाइड अकाउंट्स के अंदर पोस्ट करना है कि अगर ये सेल करा था ऊपर हमने रिकॉर्डिंग, तो सेल का जो पोस्टिंग होगी वो सेल्स के अकाउंट में जाएगी, परचेज की जो एंट्री होगी वो परचेज के अकाउंट में होगी, एक्सपेंसेस की जो एंट्री होगी वो एक्सपेंसेस के अकाउंट में होगी, और जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया तो वो सारी चीजें उसके एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड हेड में ट्रांसफर हम करेंगे। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। आई होप कि ये यहाँ से लेके 3 स्टेप आपको बहुत क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जब हम ये भी एक अकाउंटिंग का टर्म है जो कि हम नेक्स्ट वाले यानी जब पढ़ेंगे तो मैं इसके आपको पोस्टिंग करना, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा हमारा, तो जर्नल के बाद हम उसकी पोस्टिंग करना सीखेंगे कि लेजर हम कैसे, इसको हम लेजर कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं। तो यानी कि पोस्टिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पोस्टिंग टू लेजर। तो लेजर प्रिपेयर करना भी हम सीखेंगे। इसके बाद हमारा जो स्टेप होगा वो होगा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मतलब अभी हमारे पास पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस मैं आपको बता देती हूँ, ये डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को टैली करता है।
अब आप हमसे यानी कि अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम व्हाट आर डेबिट एंड व्हाट आर क्रेडिट एंट्रीज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब अभी हमें सिर्फ बेसिक्स की बात करनी है और अब सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि अकाउंटिंग का अच्छा प्रोसेस ऐसे होता है। आइडेंटिफाई करा, रिकॉर्ड करो जर्नल में, उसकी लेजर करो, उसकी पोस्टिंग करो लेजर में, फिर उसका एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्री करो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का मतलब अभी आपको ऐसे समझना होगा कि डेबिट और क्रेडिट जो टर्म है वो आगे आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको पता चलेंगे। लेकिन ट्रायल का मतलब यहाँ ये है कि जब हम अपनी एंट्रीज को क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर दी, रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद एक समरी बना रहे हैं, जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में वर्ड लिखा था समराइजिंग। तो दिस इज कॉल्ड द समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग कर रहे हैं अभी अनएडजस्टेड समराइजिंग हुई है, जिसमें अभी कुछ एंट्रीज बाकी हैं या फिर कहीं कुछ मिसमैचिंग है एंट्रीज में जो हमने रिकॉर्ड करी हो, या हमने कोई पोस्टिंग करी हो, या हमारे पार्ट पे कुछ भूल हो गई हो, ओमिशन हो गया हो, ओमिट कर दी हो हमने कोई एंट्री, तो ये सब अनएडजस्टेड माना जाएगा। जब हमने उसको डिटेक्ट कर लिया हो कि हाँ ये वाला पार्ट था, हमसे भूल हो गई, हम नहीं लिख पाए इसे, या फिर ये वाली एंट्री हमने इतने अमाउंट की नहीं इतने अमाउंट की लिख दी, गलत लिख दी, रिकॉर्डिंग हो गई, तो ये सब अनएडजस्टेड के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जब हम उसको करेक्ट कर देंगे तो उसको हम एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज के थ्रू उसको करेक्ट करके दोबारा से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी समराइजिंग तक का पार्ट। समराइजिंग के पार्ट में जो मेन जिसको हम कह सकते हैं लास्ट स्टेप है, दिस इज कॉल्ड द लास्ट स्टेप ऑफ समराइजिंग। मतलब ये सब तो आपकी प्रिपरेशन ऑफ समराइजिंग था कि आप समराइज कर कैसे रहे हो, ये सारे ट्रांजेक्शन, ये सारे स्टेप्स जो आपने फॉलो करे हैं, ये समराइजिंग के अप्रोच तक जाते जाते आपकी ये स्टेपिंग स्टोन्स थे कि यहाँ तक आपको समराइज करना है। उसके बाद जो फाइनल जो बनेगा आपका, मीन्स टू से जो फाइनल समरी बनेगी वो बनेगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एनी स्टेटमेंट विच समराइज दीज ट्रांजेक्शंस, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसके सारे नोट्स, इसके सारे वर्किंग नोट्स जितने भी होंगे वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये क्या होता है इसको मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहे हैं, हर एक बिजनेस, चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाई जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है, तो वो क्यों बनाया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमने कितना लॉस इनकर किया, हमने कितने कितने खर्चे इनकर किए, या हमें कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव हुई है। ये समरी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल्ड, इसका एक पार्ट जो मैंने भी आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लिखते हैं, और उसमें उसी अकाउंट के अंदर हम पता लगा लेते हैं कि हमने नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट हमारे बिजनेस में कितना है। उसके बाद बैलेंस शीट के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमें ये समझना होगा कि जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज का एक फॉर्मेट, मतलब हमारी जो एसेट्स हैं इट शुड बी इक्वलाइज टू आवर लायबिलिटीज, और या वी कैन से दैट आवर लायबिलिटी शुड बी इक्वलाइज टू आवर एसेट्स। दिस इज कॉल्ड, यानी कि बैलेंस शीट, तभी वो बैलेंस होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे सारे अपनी लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे सारी अपनी एसेट्स। तो हमारे पास जो आया और हमने जहां जहां इन्वेस्ट किया, मतलब हमें जितना देना है और हमें हमारे पास जितना है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी हम बिजनेस प्रॉपर वे में कर पाएंगे। और यानी कि बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें हमारी एसेट्स हमारी लायबिलिटीज के बराबर मानी जाती हैं और इक्वलाइज करना होता है। उसके बाद जब हमने सारी चीजें बना ली, सब चीजें बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद हमारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। किसके लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 6 मंथ्स, जो भी आपका फाइनेंशियल टर्म होगा, जो भी आपका फाइनेंशियल पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए आप अपने अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं। सपोज कोई कंपनी अगर 1 साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रही है, तो 1 साल के बाद उसको अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देना है, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो नए अकाउंट्स को स्टार्ट करेगी, और नए अकाउंट्स में सारा जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग कहलाएगा।
यहाँ पे जो फाइनल बैलेंस है वो क्लोजिंग, क्योंकि हम 31 मार्च में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, या हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं अप्रैल टू मार्च, तो हम अपनी क्लोजिंग जो है वो हम अप्रैल यानी कि जो अप्रैल टू मार्च है उसकी क्लोजिंग अप्रैल में हो जाएगी, जनवरी टू दिसंबर है उसकी क्लोजिंग दिसंबर में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको ये काफी क्लियर होगा। और अगर आपको कोई पॉइंट है और आपकी कोई क्वेरीज है मुझसे जो पूछने की हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग उसको आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये सारी क्लासिफाइंग, ये सब चीजें हमने करने के बाद हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का जब आप फर्स्ट चैप्टर रीड करोगे, फर्स्ट चैप्टर रीड करने में आपको पता होगा कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग नहीं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो बुक कीपिंग की पार्ट यानी अकाउंटिंग में लिखा हुआ है, तो जाहिर है अगर हम इसको नॉर्मल वे में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ट्राई कर रही हूँ कि आपको इजी वे में इसको समझ में आए कि अकाउंटिंग होती क्या है, तो मैं आप इसको समझ लो बुक कीपिंग के अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाते हैं, टू कीप अ बुक मीन्स आप एक ऐसी बुक मेंटेन कर रहे हो अपने पास जो कि जिसमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो दिस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। मतलब बुक कीपिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि विदाउट बुक कीपिंग हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन अ बुक मैनर। लाइक अगर आप एक बुक के अंदर या एक कॉपी में या एक अकाउंटिंग फॉर्मेट में उस चीज को मेंटेन कर रहे हो, मतलब बुक और कॉपी का कहने का मतलब है कहीं एक रिकॉर्डिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ कि हम क्या क्या करते हैं बुक कीपिंग करते टाइम पे। हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, मेजरिंग करते हैं कि कितना यानी कितने कितने का अमाउंट है, रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसको क्लासिफाई भी उसी टाइम पे करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से लेजर में, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था लेजर कॉल्ड अकाउंट्स, यानी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अकाउंट किसी भी एक ट्रांजेक्शन का। लाइक सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स का एक लेजर जिसको हम अकाउंट्स कह सकते हैं, सेल्स का अकाउंट, परचेज का लेजर, परचेज का अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स कहलाते हैं। और हम इस बुक कीपिंग के अंदर इस चीज को हम क्लासिफाई बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हुए चलते हैं। The main aim is to maintain systematic record of financial transactions. Bookkeeping is routine and repetitive in nature. Like ऐसा नहीं है कि मैंने आज के जो ट्रांजेक्शन है आज ही रिकॉर्ड कर दिए, कल के नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। ये बुक कीपिंग जो है वो रूटीन और रिपीटेटिव इन नेचर है। ये रोज रोज आपको यानी कि रिकॉर्डिंग करने के लिए रखना होगा, और इसको आप बुक कीपिंग इसीलिए कह रहे हो क्योंकि आपको हर एक ट्रांजेक्शन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो आपका फाइनेंशियल टर्म हो, जो भी पीरियड है आपका फाइनेंशियल, उस यानी कि पीरियड की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा। कमिंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लाइक अगर मैं बात करूं कि एडवांटेजेस क्या है बिना इन सबको रीड करे, बिना और कुछ सोचे, अभी जो हमने ऊपर इतना सारा रीड किया है, आई थिंक वहां से हम बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे पहले कि हमें अपनी खुद की बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन के बारे का पता लग सकता है, मतलब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। दूसरा कि हम मैनेजमेंट को, चाहे वो हम खुद ही मैनेज कर रहे हो, तो हमें पता चल जाएगा हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, हमारा कितना बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है। तो ये सारी चीजें हमें यानी कि खुद को और मैनेजमेंट, जो अगर हम किसी कंपनी में हैं तो हमें अपने मैनेजमेंट को असिस्ट करने में आसानी हो जाएगी। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं तो हमें लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस और इस करंट ईयर की परफॉर्मेंस हम इजिली ट्रैक कर सकते हैं कि इस लास्ट ईयर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी, लेकिन इस साल वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब जब हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन जब कर रहे हैं, हमें पता है हमने कितनी इनकम अर्न करी है, हमें पता है हमने कितने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो यहाँ से हमें अपनी लायबिलिटी का भी पता चल जाएगा कि हमें एक सर्टेन इनकम अर्न करने के बाद कितनी लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे ऑफ करनी है।
हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, लोन को रेज करने में भी भाई हम अगर बैंक में जाएंगे, हम बैंक से पैसा मांगेंगे, बैंक हमसे कहेगा कि हम आपको लोन क्यों दें, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कितना फ्रूटफुल है आपका बिजनेस, और वो बात हम तभी बता पाएंगे व्हेन वी आर हैविंग आवर अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, कि भाई ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा लॉस है, ये हमारी बैलेंस शीट है, हम फाइनेंशियली इतना साउंड है, एंड वी आर एबल टू पे ऑफ योर लोन्स एज वेल। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, एंड द लास्ट थिंग इज कि भाई डिसीजन मेकिंग तो अल्टीमेटली फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड डिसीजन मेकिंग तो हमें बिजनेस में करनी ही है, और जब हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करके चलते हैं तो जाहिर है हमें डिसीजन मेकिंग बहुत हेल्पफुल होगी, जब हमारे पास सारी चीजें अपने पास रिकॉर्डेड होंगी, बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी बिजनेस की। आई होप कि ये आपको एडवांटेजेस बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए इसमें मैंने बहुत ही कम एडवांटेजेस लिखी हैं, वी कैन राइट मोर, वी कैन थिंक मोर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग की अगर हम एडवांटेजेस पे लिखने पे आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ही है जो हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नाउ अकाउंट व्हाट आर द अच्छा, जहां एडवांटेजेस होती है वहां उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, वी ऑल नो। तो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, हालांकि इसके कोई डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, लेकिन अगर हम एक बुक लैंग्वेज में बात करें, बुकिश लैंग्वेज में बात करें, तो अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ असेट्स। लाइक जब हम असेट्स को खरीदते हैं उसी टाइम उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। लाइक मैंने आज एक असेट खरीदी, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की थी, तो 2 लाख की वैल्यू को मैंने आज ही रिकॉर्ड कर दिया, और वो 2 लाख की ही चली जाएगी। मतलब मैं हर साल उसकी 2 लाख को चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं 2 लाख की वैल्यू की ही बात करूंगी, और हर साल उसका डेप्रिसिएशन शो करती रहूंगी। तो हम मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बुक वैल्यू और जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिक वैल्यू के ऊपर बात करते हैं असेट्स की। तो ये किसकी डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। जाहिर है कि हम, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पार्ट पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वी आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड, बट स्टिल अकाउंटिंग हमें वो सारी चीजें, वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे सकता कि आगे आने वाले टाइम में हम कहाँ जाने वाले हैं, या हम कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं, या हमें कितना लॉस हम फेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस लाइक कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे विद द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइसेस, तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस के वजह से जो प्राइस में चेंजेस आते हैं, तो अकाउंटिंग इस इफेक्ट को इग्नोर करते हुए चलता है। अकाउंटिंग तो आपकी वही हिस्ट्री के ऊपर बात करता है कि आपने क्या कितना ट्रांजेक्शन किया, आज की डेट रिकॉर्ड कर लो, फिर आप उसका कंक्लूजन निकाल लो। दैट मीन्स कि प्राइस लेवल चेंजेस की अकाउंटिंग बात नहीं करता। इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एज वेल एज, ये क्या करता है कि ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी इग्नोर करके चलता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्वालिटेटिव कैसे। लाइक मेरे बिजनेस में मैंने एक मैनेजर को हायर किया हुआ है, और वो मैनेजर बहुत अच्छा काम करता है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी समझने की, और काफी बिजनेस को समझने की, और काफी अच्छे से उसका जो वर्क है वो बहुत मतलब अप टू डेट रहता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन समहाउ क्या हुआ कि उसके पार्ट पे कुछ कोई ऐसा रीजन आया, और वो उसको हमारे बिजनेस से जाना पड़ गया। सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लो, अगर वो हमारे बिजनेस से चला जाता है, तो क्या उसके जाने से मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अकाउंटिंग कहता है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग तो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, क्वालिटेटिव नहीं कह रहा है। यानी कोई भी मैनेजर अगर जा रहा है तो उसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटिंग पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा भाई। एक मैनेजर जो कि सब चीजें हमारी मैनेज कर रहा था, वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके जाने से। तो ये है कि अकाउंटिंग का एक ये फोर्थ डिसएडवांटेज है कि अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग,
as well as it is very much affected or quickly affected by window dressing. Like मैंने business में क्या करते हैं, मतलब कि क्या होता है कि अगर हम चीजों को हाइड भी कर सकते हैं, हम चीजों को हमें शो भी कर सकते हैं, तो विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में बहुत पॉसिबल है. विंडो ड्रेसिंग में लाइक अगर आपके बिजनेस में इतनी इनकम हो रही है, आप उसको कम करके शो कर रहे हो, तो ये रॉन्ग है, जो कि विच इज इलीगल, आपको नहीं करना चाहिए. जो कि हम डे बाय डे केसेस देखते हैं, कहीं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स हो रहा है, कोई मिस रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई. तो इस तरीके के जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत, मतलब कहते हैं कि प्रैक्टिकल चीजों में देखें तो बहुत लोग करते हैं गलत, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ही तो है, मतलब आप यहाँ रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे हो, आप कितने कितने के ट्रांजेक्शन कर रहे हो. तो अगर आप एक ट्रांसपेरेंट वे में और एक बहुत डिटेल्ड वे में उस चीज को समझना चाहते हो, तो आप इस चीज को समझो कि अकाउंटिंग जो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है अपने में, जिसको अगर हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, सिंपल वे में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस क्लासेस के साथ जुड़ जाएं. और एक एक पार्ट पे आपको एक एक चीज को मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको क्लियर कर पाऊं, सिंप्लीफाई कर पाऊं, आपके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर सकूं, उनके एक करेक्ट आंसर आपको दे सकूं. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट, हम इस चैप्टर को, थोड़ा हमारा ये लेंदी है, मैंने इसमें ट्राई किया कि मैं पूरे चैप्टर को इसमें कवर कर पाऊँ, थोड़ा सा पार्ट रह गया है जो हम इसको कवर कर लेते हैं, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम काफी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी मेरे इस लेक्चर से. हम बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. ऊपर हमने इंटरेस्टेड पार्टी का भी नाम लिखा हुआ था और यूजर्स का भी नाम लिखा था. तो यहाँ पे इंटरनल यूजर्स, बिजनेस के अंदर जो जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा वो ओनर्स हो सकते हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सके. मैनेजमेंट हो सकता है, जो कि वो खुद पता लगा सके हमारा बिजनेस कहाँ ग्रो कर रहा है. एम्प्लॉयज को भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि उनको प्रिपेयर करना होता है बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, डेटा को. इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो हमें देखेंगे कि हमारा बिजनेस कितना फाइनेंशियली साउंड है, तभी सो दैट उनको रिटर्न अच्छा मिल सके, तभी वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे. अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे रहे इंटरनल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट. यहाँ पे इन्वेस्टर्स हमारे इंटरनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो कि हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और यानी कि रिलेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. और हम बात करते हैं जब इंटरनल यूजर्स की, तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स, जिनसे हमने माल उधार पे लिया हुआ है और हम सेल आउट कर रहे हैं. लेंडर्स जो हमें पैसा दे रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, तो ये हमें हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज कर सकते, हमारी अकाउंटिंग को, डेटा को यूज कर सकते हैं. और गवर्नमेंट अल्टीमेटली, जैसे मैंने आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, तो गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस के डेटा को यानी कि चेक कर सकती है और हमारे यूज कर सकती है डेटा को. सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर की बात करी, ये वर्ड जो है, दो वर्ड ये हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ लेके जाएंगे. ये बात कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम. अकाउंटिंग जो है वो दो सिस्टम पे बेस्ड है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है. सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एक ही अकाउंट इफेक्ट करने की हम बात करते हैं, जो कि हम सिर्फ एक एंट्री का, मतलब एक ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा वो एक ही अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा. और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, जो कि हम वर्ल्ड वाइड डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ये है कि एक ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो एक डेबिट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज किया था, हालांकि मैंने कहा था नेक्स्ट उसमें मैं आपको समझाऊंगी. तो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री. तो डबल एंट्री का मतलब है एक ट्रांजेक्शन, लाइक मैंने अगर सेल्स करी, तो सेल्स एक ही ट्रांजेक्शन है, सेल करी, सेल का जो रिकॉर्डिंग होगी वो दो जगह होगी, एक तो सेल्स अकाउंट में होगी, दूसरी अगर मैंने उसे कैश में कराया तो कैश अकाउंट में होगी. तो दिस इज कॉल्ड द डबल एंट्री. मतलब एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री, जिसको हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, सो दैट आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए कि हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे तो किस हिसाब से कर सकते हैं. और हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे. और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं.
हम आगे आते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स में जैसे मैंने भी सिंगल एंट्री सिस्टम में बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट हम लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं और हम इक्वल अमाउंट लिखते हैं। डेबिट साइड में भी वही इक्वल अमाउंट आएगा, क्रेडिट साइड में भी इक्वल अमाउंट आएगा। और ये सिस्टम जो है वो हर एक दोनों एस्पेक्ट, मतलब एक एस्पेक्ट है डेबिट जो कि हमारे पास यानी कि वो डेबिट यानी कि दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना, ये एस्पेक्ट जो हैं जैसे एक डेबिट वाला हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट के एस्पेक्ट है, जो कि रूल्स जो है हम आगे वाले चैप्टर्स में बताएंगे आपको। तो ये जो डबल एंट्री और सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको अभी जो समझना है वो ये समझना है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो दोनों एस्पेक्ट की बात नहीं करता। मीन्स टू से अगर आप सिंपल वे में समझो से तो वो डेबिट और क्रेडिट की बात नहीं करता। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों की बात करता है। ठीक है, जब हम एंट्री पास करेंगे, जब हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होने वाला है ये चीज। ये बहुत फंडामेंटल सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। आगे है एडवांटेजेस। अच्छा, इसके डबल एंट्री हम क्यों कर, वाई वी आर नॉट फॉलोइंग सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों नहीं फॉलो करते हैं ज्यादातर बिजनेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड देता है ट्रांजेक्शन का। ये हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी चेक कर लेता है, क्योंकि एक साइड अगर हम डेबिट लिखेंगे एक साइड क्रेडिट तो हमें टैली करने में आसानी हो जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा डिपिक्शन बहुत ईजी हो जाता है कि हम फाइनेंशियल पोजिशन हमारी क्या है। एंड एज वेल एज ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, सो दैट हम यानी कि फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट वे में अपनी ट्रांजेक्शन्स को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा जो लेक्चर है आज के ऊपर, आज चैप्टर 1 के ऊपर जो हमने आज इतना डिस्कस किया है डिटेल्ड में, आई होप कि आपको बहुत क्लियर होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे इस लेक्चर के ड्यूरिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है और आपको मुझसे डिस्कस करना है, आप मेरी इस गिवन ईमेल आईडी पर academy786@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इफ यू एंड एनी ऑफ योर फ्रेंड वांट्स टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हमसे अप्रोच कर सकते हैं, हमारे इस ईमेल आईडी पे अप्रोच कर सकते हैं। वी विल कांटेक्ट यू बैक। और आई होप कि ये क्लियर होगा आपको ये चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।